Okay, I hope the screen is visible to both of you. Yes, visible. So, in our earlier live session, we talked about content strategy, how to prepare a good content for your blog or website or for a client's website. So, today we will have an overview about on-page SEO. What is on-page SEO? And basically, what is SEO? Why do we need SEO? And on-page SEO and how to do it. Okay. So, do you have any idea about SEO or have you done SEO earlier? No, I have not done SEO earlier. Okay, Just have a basic knowledge. okay. Yes. And what about you, Sravni? I just follow my Yoast notifications. I mean, Okay, okay. Just Yoast I'm SEO. very, yeah. Okay. So Yoast SEO is basically it is basically a plugin just to help in SEO. But there is no guarantee that if you are using Yoast SEO, then your keywords will rank. It is just basically a support system for all SEO, for on-page SEO. So there are a lot of things that you need to do apart from using Yoast SEO. The tool is very nice, but apart from that, you need to do keyword research before using Yoast SEO. So let us directly move on to the dashboard. This is the dashboard of one of our website, and we will directly move on to the post section. So basically, before understanding how to do on-page SEO, SEO basically stands for search engine optimization. Means SEO help us to rank our blog or website pages in the search result. And as you all know, Google is the main dominant search engine, which is used by almost everyone. And everyone want to rank their website in Google because only then they can convert, they can get monetization from that. So there can be different goals for a website. For example, if there is a business website, then its goal will be getting more sales, getting more business from it. And if we talk about bloggers, like if a blogger is doing SEO, so his or her main goal is to get more traffic, to get ranked in the Google search engine, and get more organic traffic so that he or she can earn through Google AdSense through clicks, and can get affiliate conversions. Like if he will have good organic traffic, only then he will be able to convert that traffic into sales, and he can make affiliate sales. Okay. So for example, like we did SEO of one of our services. We are into graphic designing also, and what we did, we just made a page for it, a separate page for it on the main home page of the website, and we listed all our portfolios, whatever design we have made, whatever graphics we have created, both animated and static one. And let me show you the keyword. Okay, as you can see, this is the keyword on which we are ranking right now: graphic designing services in Rohini. Rohini is the region in which I live. So it is quite a big sect. It is quite a big area, and there are different service providers in this area. Different companies are there, and you can see we are ranking on. Uh, So, okay, so these are Deepak, Google. Yeah, you are sharing WordPress dashboard. yeah. I'm changing it. Okay, so this is the keyword on which we are ranking right now. And if you will search in incognito mode also, you will be able to see our link over there. So whenever you search for services or something, on the top there will always be Google business listing. So Google My Business listing is also a nice way to get more leads and more customers.
So after that, first position is gained by Justdial, second one is obtained by Sulekha, third one webservices.co.in, fourth web mywebpocket.com, and fifth one is occupied by us. Now Justdial and Sulekha, they are very powerful sites because they are basically listing sites, and their authority and other stats must also be very high. So basically now we are ranking on this particular keyword. Now all the people who must be looking for graphic designing services and video services, they will try to contact us through our website's link. So basically main aim of SEO is to get more business, to get more conversions. Okay. Just okay. So is this screen visible to you, this dashboard screen? I have changed the screen. Yes, yes. Okay. So this is one of the posts that we got in around the year 2017 or 18 something. And earlier it used to rank on the first page on first and second position for different keywords. And those keywords have a very good volume. Like some have 10,000, 20,000, some have 50, 60,000 volume, and it gave us a lot of traffic. But right now I'm not working on this side. So earlier it used to rank, but some keywords still rank for this particular post. So let us see how we have to optimize it. First of all, like best movie download sites. This is itself a keyword, like best movie download sites, and download sites for HD movies. That is also a keyword which has good volume. So first of all, you have to prepare a good title for your content, and that title should have your focus keyword in it, like the keyword on which you want to rank. Focus keyword is the main keyword on which you want to rank. Okay. Now after that, I had created this subtitle. So it's up to you if you want to create or not. Nowadays, it is not recommended to create a subtitle just before the starting of a paragraph. So what you can do is you have to ensure that your focus keyword lies in the first paragraph, because whenever a Google bot comes, so a crawler comes. You know what is a crawler, Sravni? Ah, yes. Okay. So Google crawler, Google bot crawler, but whenever it comes on the website, so it will start scanning the website, the title area. It will mainly scan the title area. Then it will look for the keyword in the first paragraph. Okay. So here also you can see I have used this keyword, best HD movies, and you have to create a good introduction for your article. Like I have started, we all love watching movies, and that too HD movie, right? So like this way you have to create an engaging introduction part. After that you can add one or two paragraphs. Okay. Now coming to the first heading, H2, title will be H1 and H2 will be the second heading in the paragraph. So this is the heading that we have used, best HD movies, and you can see again that we have already used the focus keyword in this title also, this heading also, best HD movies. And best HD movies and best HD movies download sites, both of them are keywords.
Now this one, best HD movies download site. This is the long tail keyword. Now after that, we have listed all the websites from where someone can download a movie, both Bollywood and Bollywood movies. Okay, so let me just scroll it. Now you can see length of the length of the content is quite good. It has around 2297 2300, approximately 2300 words. So what you have to do, whenever you prepare a strategy for SEO, whenever you want to outrank your competitor, so you have to look for the content which is already ranking on the first page. Like I have used 2300 words, so which is quite a good amount of words. Okay, if you have a listing article, like you have created a list in your article, then you can create separate content for each subtopic or sublist. Now you can see, if you see these paragraphs, like this one, like if you take point number 11, movies couch is also one of the best movie download website. So as you can see, we have already used the keywords over here. Okay. So in this way, you have to spread your focus keyword, your main focus keyword, and the related keyword in the article. Okay. Now in between, you can see I have already added an internal link, best movies of 2017. This is also one of the internal links. So you have to create internal links. Do you create internal links? Srabni, you are running a blog. You are already running a blog. Do you create internal links? Am I audible, Sravni? Ah, yes. Okay, so do you create internal links? Ah, yes. Okay, okay. How many internal links do you create? One or two. Okay, okay. Try to create more internal links, because more internal links will help you to improve your page authority, overall page Okay. authority. Yeah, internal links are quite good, because you do not have to take external link, and internal link has its own importance in page authority only. Okay. And Saurabh, you don't have your own blog, right? Are you running a blog or something, Saurabh? Means one means my friend's business that website no. Okay, okay. So I written a one blog there. So I'm trying to write a more blogs right Okay, there okay. about a home interior and all. Okay, great. So, okay. So, what you have to do whenever you have a keyword in your mind, first of all, let me show you the keyword tool which I used. I use a paid version, and if you want, you can use Google Keyword Planner, that is free to use. So, till the tool is loading, Sravni, how do you do your keyword research? How do you find? I mean, do you even research keywords before writing, or just start writing? No, Okay, no. I just pick my topics Okay, and start writing. from.
Okay, Yes. so it means that we do not do any kind of keyword research or something, right? So, for No. example, tell me a topic which you have written recently about your own blog on your own blog. I wrote about diet for PCOD. Okay, diet for PCOD. So, if we search for this particular keyword only, diet for PCOD, now, so as you can see, just a second, sharing the screen. Deepak, are you sharing the screen? Yeah, just a moment. I'm sharing the screen. Okay. Okay, so now is the screen visible to you, Saurabh? Saurabh, is it No, visible to you? no, No. Deepak. Just a moment. No, it is. Yeah, now it is visible. Okay. And to you, Shravani, is it visible to you, Shravani? Yes. Okay. Okay. So I just typed this Yes. particular keyword, diet for PCOD. It will be quite a competitive keyword. We will check for it. Okay. So now let me just scroll it. On the first position is polycystic ovary syndrome. Now this article has been written by healthline.com, and if you write in health niche, so you must be knowing that it is quite a good website. Have you heard about this website, healthline.com? Quite popular website. Sravni? Yes. Okay. So ये तो Yes. already, Yes. yeah, they are already into business from a very Hello. long time. Yeah, you are audible. I'm saying they are already into business from a very long time, and second position is Okay. occupied by medicalnewstoday.com. Then this third website. Then there are YouTube links. Okay, now these YouTube links are there, and all these websites. So let me just open the first article. Okay, now you can see medically reviewed by this particular doctor. Okay, तो अभी क्या है, गूगल का एक एल्गोरिथम आया है, पढ़ा Okay. था। तो उस एल्गोरिथम में क्या है कि अगर मेडिकल आर्टिकल्स है ना, अब पीसीओडी की मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो पर्सन उसके बारे में लिख रहा है मेडिकल टॉपिक पर, ही और शी शुड हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड, तो वो तभी उसको जो है Okay. प्रेफरेंस देगा सर्च इंजन में। अब इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है क्योंकि इन्होंने क्या है, एक तो अथॉरिटी बहुत अच्छी है इस वेबसाइट की। दूसरा, ये जो आर्टिकल है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिव्यूड बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स, ऑल देयर आर्टिकल्स आर रिव्यूड बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब कंटेंट How लेंथ, to add that snippet? व्हाट, Sorry. क्या चीज़? How to add that other snippet? To add every qualification we have. That one, okay, I will tell about that also, just a minute. Okay. So let me just scroll it, and as you can see, they have written quite a good content. Now there are so many links. These green color, these are links. Yeah. The phrases which are in light green color, they are all links, and they must have created internal links as well as high authority outbound links. Okay. Okay. Now, what they have done, they have, for each topic they have created this color palette. Okay, and just to gain attention, to increase engagement. Okay, so you can see the content is quite synchronized. It is in an organized manner. Now here they have social sharing icons. Okay, so content length is nice. Okay, so what I want to say is that, let me just search for this particular keyword, like uh,
like you are ranking, you are writing and you want to rank in India only, right? Right now your main traffic source is Indian, right? So I've just copied this Yes. keyword diet for PCOD. Okay. Suppose all of your traffic is from India. So what I do, this is a paid tool, KW Finder, and it is one of the best tool which I prefer over Ahrefs and SEMrush because there is a lot of variation. Saurabh, have you ever used Ahrefs and SEMrush? No. No, no, Okay. Okay. I never used that. Okay. So basically, Ahrefs and SEMrush Is are, it a keyword research? yeah, yeah. Keyword research too? Keyword research tool. I'm changing the screen. I hope the new screen is visible to you. Yes, yes, visible. Okay. Now, Shravani, you have written on this topic. So, what keywords have you chosen? Like, for example, diet for PCOD. Now, if you see diet for PCOD, here you can see monthly search volume on the right. Like 930 is the search volume monthly. Okay. Okay. So these much number of people search for this particular keyword in a month. Now diet for PCOD and its CPC यानी कि cost per click it is $0.20. ओके, Okay. पेड क्लिक की बात नहीं करेंगे हम, PPC, अभी हमें ऑर्गेनिक की बात करनी है। तो KD मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी, है ना? तो कीवर्ड डिफिकल्टी Okay. कितनी, यानी कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू रैंक दिस पर्टिकुलर कीवर्ड फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट, है ना? कितना डिफिकल्टी। नाउ कीवर्ड डिफिकल्टी इज आउट ऑफ 100. Okay. Okay. Now let me show you the second keyword, PCOS diet. Now this is the second keyword, PCOS diet. So you will want to rank for a keyword which have good volume or which have very low volume. For which one would you like to rank? किस में रैंक करना चाहोगे अपने की मतलब आर्टिकल को, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना? अब फर्स्ट वाले में 930 Yes. है वॉल्यूम, तो उसमें रैंक करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जितना सेकंड वाले में रैंक करना होगा। लेकिन सेकंड वाले का फिर अब कीवर्ड डिफिकल्टी बढ़ गया, है ना? मान लो तुमने हाँ. PCOS क्योर है, ये फिफ्थ वाला कीवर्ड, अगर इसको ले लेते हो बिना कीवर्ड रिसर्च करे, है ना, यू जस्ट रैंडमली स्टार्टेड राइटिंग and without having idea about the keyword difficulty and the volume. So now see, the keyword difficulty is 44. So do you think will you be able to uh, rank for this particular keyword when the keyword difficulty is 44 and your site is totally new? I will assume that your site is new and you do not have good backlinks, right? Okay, so No. it has been changed. The updated keyword difficulty is 56, Yes. है ना? तो वो बहुत हार्ड है, हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है। 56 तो भूल ही जाओ, बल्कि 30 भी रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ना, ग्रीन कलर वाला PCOD डाइट। नाउ यू कैन सी इट्स वॉल्यूम इज 13,500, है ना? इतना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, Yes. CPC Yes. भी अच्छा है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, 26 था पहले। अब जैसे मैंने क्लिक करा तो अपडेट होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। ट्रेंड्स देखो इंक्रीज करके ना, यहाँ पर ये सर्चेज बढ़े तो कंपटीशन भी बढ़ गया। अभी इसका कितना है कीवर्ड डिफिकल्टी, 30। ठीक है, सो यू हैव टू लुक फॉर कीवर्ड्स विच आर हैविंग लो कीवर्ड डिफिकल्टी एंड हाई वॉल्यूम। ठीक है, अभी नीचे आ जाते हैं, कुछ और कीवर्ड्स देखते हैं। और ये देखो सारे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपने आर्टिकल में So below 30, right? मतलब कोशिश करनी है बिलो 30 मिल जाए, और अगर बिलो 20 मिल जाए तो और बढ़िया, है ना? 20 से नीचे ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन होते हैं कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड कुछ मिल सकते हैं। ठीक है, देखो मिल गया ना, देखो कितना अच्छा कीवर्ड मिल गया। अब PCOD डायरेक्ट जो है, सिर्फ PCOD, है ना? Okay. तो उसका देखो, ये PCOD जो प्रॉब्लम है 18 स्टिल इजी, तो इसको लिख लो,
मतलब लिखना क्या है, ये तो याद ही हो गया। पीसीओडी एक कीवर्ड मिल गया ना। अब इसका वॉल्यूम देखो कितना अच्छा है, 1,58,000 अगर सिर्फ पीसीओडी पे रैंक कर दो। ठीक है। जी। और सीपीसी काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट पर क्लिक मतलब ठीक है, अच्छा सीपीसी है इंडिया के हिसाब से, $0.85। यानी कि अगर आप इस पर रैंक करते हो, सो पर क्लिक है ना, एड क्लिक्स अगर आते हैं तो यू विल बी गेटिंग अराउंड $0.85। यानी कि अगर 100 क्लिक्स आते हैं तो अच्छा अमाउंट आप जो है जनरेट कर सकते हैं पर डे। तो इस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है एडसेंस से। ठीक है, पहले आर्टिकल रैंक करता है। अब 18 कीवर्ड है, हमें पता लग गया कि इसमें रैंक करने में, इसको लिखने में या इसको रैंक कराने में बेनिफिट है, तो मैं इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दूँगा। अब जैसे मैंने एक कीवर्ड बताया था, बेस्ट एचडी मूवीज़, ठीक है, उसका एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये आप जो है ना, मैं तो जैसे मैंने तो पेड टूल लिया हुआ है, तो अगर पेड टूल आप अभी स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं लेना चाहते, तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आइडिया मिल जाएगा लो, मीडियम या हाई डिफिकल्टी। ठीक है। अब देखो बेस्ट एच ओके। डी मूवीज़ जो है 31 है इसका कीवर्ड डिफिकल्टी। तो अगर बैकलिंक्स अच्छे हैं तो ट्राई किया जा सकता है इसमें। बहुत अच्छा इसका वॉल्यूम है, 2,31,000। ठीक है। फिर उसके बाद देखो एच डी मूवीज़, इसका बहुत ही लो है कीवर्ड डिफिकल्टी, 16 है सिर्फ। ठीक है। और 4,02,000 इसका वॉल्यूम है। ठीक है। तो अगर फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाते हो, एक तो ट्रैफिक देगा, ऊपर से सीपीसी भी ठीक ठाक है, मतलब $19.19 है। ठीक है। तो $0.19 इसका सीपीसी है। अगर 100 मान लो 100 क्लिक्स आपके पास आते हैं पर डे, ठीक है, तो यू विल बी मेकिंग $19 है ना। ऑर्गेनिक क्लिक्स अगर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग है आपके पास और एड क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर, तो यू विल बी मेकिंग $19 फ्रॉम 100 क्लिक्स। तो सीपीसी जितना ज़्यादा होगा एक दिन में, मतलब जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा। अब इसी तरह से फुल मूवी ऑनलाइन, सारे कीवर्ड्स हैं। तो क्या करना है, हमें एक रखना है फोकस कीवर्ड। उसके बाद जो इसके रिलेटेड है ना, जैसे फुल मूवी ऑनलाइन मैंने इसको एक कीवर्ड मान लिया। ठीक है। उसी कीवर्ड को मैं अपने आर्टिकल में अलग अलग जगह पर यूज़ कर लूँगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नो। अगर किसी कीवर्ड पे मतलब अगर एक कोई सिंगल कीवर्ड हम ले ले लिए, जैसे कि पीसीओडी, तो उसका मतलब वॉल्यूम क्या? उसका 5 लाख समथिंग था शायद, कुछ ऐसा। अच्छा, क्या? तो फिर क्वेश्चन क्या है मतलब? तो उस पे मतलब पीसीओडी हमने यूज़ किया और उसके आगे डाइट भी यूज़ किया, तो मतलब हाँ, वो चेंज पीसीओडी हो डाइट जाएगा। करके तो पीसीओडी डाइट चेंज हो जो है ना, जाएगा। अपने आप में वो एक अलग हाँ। कीवर्ड है। ठीक है। अब होता क्या है, जनरली नॉर्मली क्या होता है, अब वैसे तो इसमें उल्टा है, जो पीसीओडी इंडिपेंडेंट है ना जो वर्ड, उसमें वॉल्यूम हाई है हम्म। और कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी लो है। जबकि होता क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो बड़ा फ्रेज होता है ना किसी वर्ड का, उसका होता है ज़्यादा, मतलब इसका कम होता है। ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट है ना, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था कंपटीशन, लेकिन इसका कंपटीशन उल्टा है, कम है बल्कि। और जो लॉन्ग फ्रेज है उसमें कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि जैसे हम ऐड करते रहते हैं ना वर्ड, वैसे वैसे वो एक न्यू फ्रेज बन जाता है, तो कंपटीशन अपने आप ही कम होता रहता है। जैसे एप्पल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, फिर एप्पल आईफोन थोड़ा सा कम हो गया कंपटीशन उसमें, मतलब ठीक है, थोड़ा सा इजी हो ओके। गया। ठीक है। हालांकि उसमें भी बहुत बजट चाहिए, लेकिन अगर मैं लिखूंगा कि बेस्ट आईफोन ऐप्स 2020, तो ये अपने आप में एक नया कीवर्ड हो गया, इसको रैंक करना आसान है। या बेस्ट गेम्स फॉर आईफोन इन 2020। ठीक है। बेस्ट आईफोन, टॉप 10 आईफोन गेम्स। ठीक है। इस तरह से, तो ओके। वो एक अलग कीवर्ड हो गया। अब जैसे ये है हमारा, मैं ये दिखाता हूँ जो हमने रैंक करा है, हमने किस तरह से रैंक करा है। क्या?
I hope the new screen is visible to you. ये एक्सप्रेस वेब सॉल्यूशन वाली स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। ठीक है। अब इसमें देखो, ये हमने इसमें क्या करा है, सेपरेट एक पेज बनाया, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज इन रोहिणी दिल्ली। ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये कंटेंट मैंने ही फ्रेम करा है। मैंने एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा ग्राफिक के बारे में, फिर अफोर्डेबल ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज इन रोहिणी जो मेरा कीवर्ड है, उसी को मैंने यूज़ करा। ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग, बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स, एनिमेटेड सोशल मीडिया, फेसबुक वीडियो, ये सब जो है मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है। जो जो सर्विसेज ग्राफिक में आ जाती हैं, यानी कोई भी पर्सन किस सर्विस के लिए ढूंढ रहा होगा, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट बैनर। ठीक है। ये मैंने बैनर यहाँ पे लगा दिया। अब ये एनिमेटेड बैनर है, तो प्ले करोगे तो प्ले हो रहा है इस तरह से। ठीक है। अब नीचे जैसे जाओगे तो मैंने इसी तरह से जितना हमारे बैनर्स वगैरह ना, काफ़ी सारे बैनर्स मैंने इसमें ऐड करे हुए हैं सैम्पल या पोर्टफोलियो के पर्पज से। ठीक है। तो काफ़ी कंटेंट हो गया इसमें, सारे बैनर्स हैं, वीडियो बैनर्स हैं, एनिमेटेड बैनर्स हैं, स्टैटिक बैनर्स हैं। तो शुरू में कंटेंट आ गया। ठीक है। फिर नीचे बैनर्स आ गए, फिर थोड़ा सा और कंटेंट आ गया। अब इसका अगर वो चेक करोगे परमालिंक, तो परमालिंक मैंने रखा हुआ है बहुत शॉर्ट, ऊपर सबसे टॉप पे, इसको कहते हैं परमालिंक, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। ठीक है। तो परमालिंक में आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। जैसे पीसीओडी डाइट था ना कीवर्ड, तो पीसीओडी डाइट जो है आपके उसमें आना चाहिए फोकस कीवर्ड में, टाइटल में आना चाहिए। टाइटल के बाद ठीक है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, फिर फर्स्ट हेडिंग में आना चाहिए, फिर बीच में स्प्रेड उसको करना है, और फिर लास्ट जो पैराग्राफ होता है ना आपका, जो लास्ट पैराग्राफ होगा, ठीक है, जैसे एंडिंग पैराग्राफ, तो वहाँ पर इंक्लूड करना है। अब मैंने क्या है, इसमें लास्ट में जैसे आ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल दे दिया और मोबाइल नंबर दे दिया। और अब ये क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि एक तो पेज में बैकलिंक्स भी ठीक ठाक बने हुए, अच्छे खासे बैकलिंक हैं, और इसमें मैंने वीडियो कंटेंट भी जैसे डला हुआ है, मतलब एनिमेटेड बैनर्स जो हैं ये डले हुए हैं, तो इससे भी अथॉरिटी जो है ना पावरफुल हो गया, मतलब पेज जो है एक तरह से। ठीक है। फिर जैसे आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया टूल में, आपको पता लग गया कि ये कीवर्ड है, मान लेते हैं, वापस आ जाते हैं टूल वाले विंडो पर। ठीक है। मान लेते हैं मुझे इस कीवर्ड पर रैंक करवाना है एच डी मूवीज़ पर। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ये वाली टूल वाली? Yes. हाँ ओके। विजिबल। नाउ द कंपटीशन हैज चेंज्ड, है ना, 21 हो गया है, मतलब ये ओल्ड डाटा था इसमें, अभी जैसे मैंने अपडेट करा तो आजकल इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो 21 है। 21 फिर भी बहुत इजी है रैंक करना, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, 4 लाख समथिंग। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन ऑलरेडी क्या क्या सर्च रिजल्ट हैं। तो राइट साइड में SERP। ठीक है। SERP यानी कि जो सर्च रिजल्ट्स ऑलरेडी विजिबल हैं अभी सर्च इंजन में, गूगल में मेनली अभी। तो सबसे टॉप पे यूट्यूब का किसी का चैनल है तो वो रैंक कर रहा है। उसके बाद एक कोई ऐप है प्ले स्टोर पर, वो रैंक कर रहा है। अब देखो यूट्यूब, तो यूट्यूब के चैनल का DA, यूट्यूब तो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, डेली कंटेंट अपडेट होता है उस पर। तो देखो यूट्यूब का DA देखो कितना है, 100। ठीक है। PA 63। फिर अगर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे 99 और 60। फिर जो एक वेबसाइट है republicworld.com, ठीक है, वो रैंक कर रही है, जिसका DA 65 है, PA 37 है। पी PA पेज अथॉरिटी। पीए क्या है?
हाँ PA37 है इसका, थर्ड वाली वेबसाइट का। ठीक है, अब ये तो हो गई, इनको तो आउट रैंक करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि डीए काफ़ी हाई है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जिनका डीए हाई है वही रैंक करेंगे। ये देखो एग्जांपल सामने है, इसका डीए देखो कितना है, सिर्फ 23 डी है ना। पेज अथॉरिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, 20 है सिर्फ, फिर भी ये रैंक कर रहा है क्योंकि इसने आर्टिकल अच्छा लिखा होगा। ठीक है, काफ़ी लेंदी आर्टिकल लिखा होगा। और उसके बाद या हो सकता है इसमें जो है डायरेक्टली मूवीज़ के लिंक हो या कुछ ऐसा। Z5.com जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। फिर duupdates.in ये रैंक कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स इस तरह से ये रैंक कर रहा है। ठीक है, फिर ये देखना है कि टॉप 10 पोजीशन में आ जाओ। जैसे हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक सर्च देखते हैं इसका। मान लेते हैं मैंने ये एक कीवर्ड लिया, लैपटॉप्स अंडर 40,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो है जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है उन्हीं के लिंक आएंगे, लिस्टिंग जो होती है, क्योंकि वो पावरफुल लिंक्स हैं काफ़ी। उसके बाद फिर आपने चेक करना है जो लिंक्स रैंक कर रहे हैं, जैसे vsbytes.com, या सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 91mobiles.com, ये जैसे ये ले लेते हैं techradar.com वाला लिंक जो है, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000। तो टेकरेडार भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अथॉरिटेटिव वेबसाइट है। ठीक है, अब इन्होंने देखो सबसे पहले टाइटल में इनके आ रहा है बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 इंडिया। उसके बाद देखो इनका जो कंटेंट है, काफ़ी बड़ा कंटेंट है इनका, है ना। और हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज मैनर में है। सबसे पहले एक सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ है हर पैराग्राफ में। नेम आ गया, फीचर्स इन्होंने बोल्ड में करके दिखाए हैं, बुलेटेड पॉइंट्स हैं, वैल्यू फॉर मनी फीचर्स जो हैं, फिर पैराग्राफ है, सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ है। जो इमेजेस हैं हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, अच्छी इमेजेस यूज करिए। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब कीवर्ड रिसर्च कर लिया, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ये देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट इसमें ऑलरेडी रैंक कर रही है ना। और जो जैसे ये है techradar.com, तो देखना है इनका कंटेंट साइज कितना है। मान लो इन्होंने 1200 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1200 वर्ड से ज़्यादा, यानी कि 1500 वर्ड या 1400 वर्ड का एक आर्टिकल प्रिपेयर करना है। और कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आउट रैंक कर पाओगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपका बजट है तो आप जो है, जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, जैसे लैपटॉप्स अंडर 40,000, उस पर बैकलिंक बनवा सकते हैं, दूसरे ब्लॉग से लिंक ले सकते हैं। बैकलिंक्स पता हाँ है ना, बेसिक आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत बैकलिंक का। हाँ श्रवणी, आपको भी पता होगा बेसिक थोड़ा बैकलिंक्स वगैरह का, है ना। तो इस तरह से बैकलिंक ले सकते हैं दूसरी साइट से जो रिलेटेड न्यूज़ है। जैसे लैपटॉप पे अगर लिख रहे हो तो दूसरे जो टेक ब्लॉग है, दूसरे टैग ब्लॉग को आप गेस्ट पोस्ट दे सकते हो, वो आपका पोस्ट ऐड करेंगे और आपको एक या दो, जनरली एक ही देते हैं, एक डू फॉलो लिंक आपको देंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज टेकिंग बैकलिंक्स। अब बैकलिंक आप गेस्ट पोस्ट के थ्रू लिख सकते हो या अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ना उसका एसईओ करना है। ऑन पेज में जो हमने डिस्कस करा, ऑन पेज में क्या क्या करना है, फीचर्ड इमेज लगानी है ना। फीचर्ड इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। टैग्स आपने ऐड करने हैं, टैग्स ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। टैग्स का पहले यूज़ हुआ करता था, अब इतना यूज़ नहीं है टैग का। जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ आर्टिकल तो काफ़ी बड़े बड़े इसमें टैग्स डाले हुए हैं, तो इतने बड़े टैग नहीं डालने हैं, छोटे टैग डालने हैं। ठीक है, और कैटेगरी ज़रूर बनानी है अपने आर्टिकल की, और सही कैटेगरी में उसको ऐड करना। कंटेंट की लेंथ डिपेंड करेगी कि ऑलरेडी जो आर्टिकल रैंक कर रहे हैं उनकी कंटेंट लेंथ कितनी है। ठीक है,
अब जैसे मैंने इसमें 23 हेड वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आपने देखना है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है, जो ऑलरेडी रैंक कर रहा है, उसने कितना बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है। फिर इंटरनल लिंक्स प्रॉपर ऐड करने हैं, ठीक है। और दूसरा इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट में, ठीक है। और लास्ट जो पैराग्राफ है ना, लास्ट पैराग्राफ में भी आपका फोकस कीवर्ड अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे इसमें मैं दिखा देता हूँ, मैंने भी शायद यूज़ किया होगा लास्ट में। देखो ये लास्ट जो एंडिंग पैराग्राफ है, मैंने इसमें जो है ये यूज़ किया है ना कीवर्ड, फ्री मूवी डाउनलोड साइट्स, इस तरह से। तो आपको इस तरह से इसमें कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में कुछ डाउट है अभी? नहीं, एक्चुअली मुझे मतलब अभी वो सोशल लिंक्स जो डालते हैं ना अपन, तो उसमें मतलब कोई प्लगइन्स है क्या उसके लिए? हाँ, उसके लिए ऐड टू एनी शेयर एक प्लगइन होता है, ऐड टू एनी। ओके। हाँ, वो आपके जो होम पेज पर आर्टिकल शो होंगे वहाँ पर भी आ जाता है, और बाकी जैसे आर्टिकल खोलोगे तो अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, टॉप में, आर्टिकल एंड होने के बाद या आर्टिकल स्टार्ट होने से पहले। तो उसमें जो है सोशल मीडिया आइकन्स आ जाते हैं जो भी आप सिलेक्ट करोगे, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का, फ्लिपबोर्ड का, है ना, व्हाट्सएप का, इस तरह से, ठीक है। बाकी इंटरनल लिंक जरूर करनी है। अब इंटरनल लिंकिंग रेलिवेंट टॉपिक्स पर करनी है। जैसे मैं अपना मूवी का आर्टिकल लिखा है ये मैंने, तो मूवी के बारे में ही, मतलब मूवी से रिलेटेड और जो आपके आर्टिकल हैं, जैसे ये तो हो गया मूवी डाउनलोड का, फिर एक स्ट्रीमिंग का भी इस पे है, तो उसी को लिंक दे दो, बेस्ट मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, इसी में इंटरनल लिंक्स, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे यूज एसईओ यूज़ कर रहे हो अगर, ठीक है, तो फोकस कीवर्ड आपको यहाँ डालना है अपना। और अब ये मेरा तो ये पुराना है, मैंने इसको ऑप्टिमाइज नहीं करा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है आपका मेटा। मेटा क्या होता है, जो सर्च इंजन में, जैसे गूगल में कुछ कीवर्ड टाइप करा, तो जो सर्च रिजल्ट ओपन होके आता है ना, उसके नीचे, टाइटल के बिल्कुल नीचे जो होता है, उसको बोलते हैं मेटा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बेस्ट एलटी मूवीज, ये तो मेरा कीवर्ड हो गया, फोकस कीवर्ड। अब जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये जो पैराग्राफ विजिबल है,